Hey, hello to everyone to our monthly webinar. It's good to see a lot of people here. Hey, we're going to start the webinar shortly and talk about the Indian markets, a little bit the AI and how to use the algorithm to identify the best promising opportunities in the Indian markets. And we're going to see a few examples today as well. If you have any questions during the webinar, please ask us through the Q&A and do not use the chat option, just the Q&A, and we'll try to answer as much as questions as we can by the end of the webinar. We have a really interesting webinar today, and we're going to start in 2 more minutes because we see more people are joining. And yeah, you please do not raise your hands. Just write the questions in the Q&A, and we'll try to answer everything. And Keshav will be joining us shortly, and we're going to start the webinar. Yeah. Hi. Hi, sir. Hello, man. How Hello, are you? Good everyone. to see you. All Hello. good, all good. Same here. Good to see you too. Okay, so yes, we have started the webinar. So hello everyone. स्वागत है आप सभी का शून्य एंड आई नो फर्स्ट ईयर जॉइंट वेबिनार में जहाँ पर हम आपको एक अलग ही एआई की दुनिया में लेके जाने वाले हैं। सो आज देखते हैं किस तरह से एआई हम एक रेवोल्यूशन लेके आता है हमारी ट्रेडिंग की जर्नी में और हमारी मदद करता है कि किस तरह हम अपने लिए कुछ अच्छे इंसाइटफुल ट्रेड्स आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से होंगे। सो आई नो फर्स्ट एक इजराइल बेस्ड कंपनी है जो कि हमारे लिए एआई प्रेडिक्शंस देने का काम करती है और ये अपने आप में एक यूनिक तरह से इस प्रोडक्शंस को देते हैं। अब आपने कई सारे देखे होंगे कि एआई पोर्टफोलियो मैनेज करता है नाउ, बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हो रही है कि स्टॉक्स फाइंड आउट करके आप लोगों को बताता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियल रख सकते हैं अपसाइड या डाउनसाइड जाने का आने वाले समय में, चाहे वो कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक की बात करना हो। सो ओवर टू यू यारोन सर। सो इट्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक आई नो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से यारोन सर, जो कि ज्वाइन किए हैं Israel and Ben, जो Ben is also there with us. So over to you, Yaron sir and Ben, please. Thank you very much. Ben, before we starting, let's start quickly with the disclaimer. Yeah, sure. I know first daily market forecast does not provide personal investment or financial advice to individual or active person, financial, legal, or institutional investment advisors, or individual advocate to purchase or sale any of the security investment to use a particular financial strategy. All investing, stock forecasting, investment strategies include this webinar examining the risk of loss of some of your even or all of your capital. For purchasing any financial strategies discussed on this webinar, you should always consult with a licensed financial advisor. And basically, we are giving you an example here how the Shoonya platform is working and the algorithm is working through the Shoonya platform. Do not use it as a financial advice for yourself. And again, if you have any question during this webinar, please send it through the Q&A and we'll try to answer all of your questions. Perfect. Let's start. We have a very interesting webinar today. So let's jump into the webinar itself.
I will start with a quick overview of I Know First, the algorithm, the technology, and then we are going to drill down into the market and to review several examples. I Know First, we are AI company. Our main solution is a predictive AI algorithm that identifying the most promising investment opportunities in the market on a daily basis. We are utilizing artificial intelligence, more specifically deep learning, artificial neural network, genetic algorithms to predict the financial market. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets from different asset classes, equities, ETFs, commodities, currencies, indices, with daily forecasts for multiple timeframes, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges, including the stock exchanges in the US. And specifically, we are covering over 1,500 Indian scripts from different investment universes, mega cap, mid cap, and also small caps. We are going to discuss it in the webinar itself, and we are going to see several examples. ओके सो आज का जो वेबिनार है, पहले तो एक जनरल डिस्क्लेमर कि जो भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिन भी स्टॉक्स का हम यूज करेंगे, जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये जस्ट एक आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इन स्टॉक्स का यूज किया जा रहा है। और अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी अपनी डाल सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई जो है वो वेबिनार के एंड में देंगे। और साथ ही ये है कि आपको जो भी AI प्रिडिक्ट करता है, आपने उसके ऊपर अपनी थोड़ा रिसर्च जरूर करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने ट्रेड्स लेने हैं। सो अगर बात करें हम AI की, तो इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी मार्केट में थोड़ा नया है, डिपेंडिंग ऑन दिस फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी यहाँ पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम बात करें आई नो फर्स्ट की, तो आई नो फर्स्ट जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि AI बेस्ड है। 13,500 एसेट्स के ऊपर डेली फोरकास्ट देता है, जिसके अंदर स्टॉक्स हैं, ETFs हैं, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडाइसेस और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। सो 50 से ज़्यादा ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पर ये अपनी AI प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही US, यूरोप, इजराइल और एशिया से रिलेटेड बहुत से बाजारों पर यहाँ पर आपको प्रोडिक्शंस देखने को मिलती हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके जेनेटिक एल्गोरिदम्स लगाकर आप लोगों के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट किए जाते हैं। और इंडिया में भी 1500 स्टॉक्स से ज़्यादा के ऊपर डेली आपको एनालिसिस करके फोकस बताया जाता है कि कौन से स्टॉक्स अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं और कौन से स्टॉक्स पे डाउनसाइड आ सकती है आने वाले समय में। सो ओवर टू यू यारन सर। Thank you. Okay, and if we are jumping for a live example from the previous months, here we can see a 1 month prediction that our algorithm was generating on the 5th of June 2024. We can see the scripts, the stocks that the AI algorithm was identifying from the entire Indian market. This example is from the large cap investment universe. And on the right side, we can see the time frame that we are referring to. This is a forecast, a 1 month forecast. And basically here we can see the performance of the scripts that the AI algorithm picked on this date. This is the performance until the 4th of July. We can see that the stocks that was located at the top part of this heat map was generating the highest return. Don't worry, in the webinar we are going to assist you and to explain to you how to read the numbers, the indicators that you see here.
But as a quick, simple example, we can see the 8 stocks that the algorithm picked, and we can see the performance of those stocks on the right row. So the first stock was generating almost 25% over this month. The second one made 17%. The third one had 17.4%, 15%, and so on. And the average of all the peaks, as you can see in the last row, was 13% versus the performance of the market, the 11% performance of the market. So in the webinar, we are going to go over different examples. Another example is basically from the US market. In the last weeks, everyone talking about Plantier from the US market. But what if you could buy this specific stock 1 year ago? In this example, we can see a forecast from the 1 year time frame for 1 year ago, from last February 2024. We can see that the AI algorithm picked Plantier, but also additional AI stocks such as SE, NET, LC, and I think the results speak for themselves. It's a very interesting example because Plantier is the most, let's say, everyone is talking about Plantier during this year, and it's interesting to see that the AI was capable to capture this opportunity already 1 year ago. सो अब हम बात करते हैं कि पहले तो हम लोग जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो एज पर कंप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ पुराना डेटा यहाँ पर आप लोगों के पास लेके आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं ड्यू टू सम सेबी गाइडलाइंस हम लोग जो है रिसेंटली डेटा पर बात नहीं कर सकते हैं। मिनिमम हमें 3 मंथ्स ओल्डर डेटा यूज़ करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं एआई की, एआई ने किन स्टॉक्स को प्रिडिक्ट किया था और उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। तो कुछ पुराना डेटा आप लोगों को दिखाएंगे 4 जून 2024 को। कुछ स्टॉक्स एआई ने प्रिडिक्ट किए थे जो कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखते थे। सो ऐसे 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं जो 4 जून को प्रोडक्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट के स्टॉक के अंदर आपको 25%, ऑलमोस्ट 25% की रिटर्न देखने को मिली थी। आवास, ग्राइंडवेल, मेट्रॉन, सीजी पावर, वेदांता, तांगा सॉल्यूशन, जेके सीमेंट, एपीएल अपोलो, वोल्टा, टाटा एलेक्सी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आपको ये रिटर्न्स अच्छे देखने को मिले थे, जो स्टॉक्स आपके लिए प्रिडिक्ट किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस 1 मंथ के टाइम फ्रेम में बीएससी जो हमारा सेंसेक्स था, बीएससी का जो एवरेज रहा था वो अराउंड 11% के रिटर्न थे। और वहीं हम बात करें आई नो फर्स्ट के एवरेज की, तो 13.26% के रिटर्न यहाँ पर बेंचमार्क को बीट करते हुए आपको दिखाई दे रही है। सो ये है पावर एआई का कि आपको 1 महीना पहले इसने वो स्टॉक सजेस्ट कर दिए थे जो कि आने वाले 1 महीने में अपसाइड जाने का पोटेंशियल रखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड here answer please. Yes. So अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। जैसे कि अभी हम अगर बात करें यहाँ इंडियन मार्केट्स के अंदर, तो चलो हम रिसेंटली डेटा की बात नहीं कर सकते, बट हाँ ग्लोबल सेक्टर्स में हमें देखने को मिलता है। एक हम परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। सो एक पीआईटीआर जो है प्लांटर का स्टॉक है जो कि 1 साल पहले जो है वो एआई ने प्रेडिक्ट किया था। सो यहाँ पर जो है 333% का रिटर्न, तो 1 साल में पैसा 3 गुना करके दिया है एआई के सजेस्ट किए हुए स्टॉक ने। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर हम क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ड्यू टू कंप्लायंस हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
तो ग्लोबल मार्केट को ही बेंचमार्क लेके आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 20% का रिटर्न ग्लोबल मार्केट में है, वहाँ आई नो फर्स्ट का जो रिटर्न एवरेज है वो 68.28% का है। सो बेंचमार्क को कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट किया है एआई ने। सो इसी तरह से एआई इंडिया में भी अपने प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करता है कि आप किन स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हैं और कहाँ पर आपको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड का पोटेंशियल आपको दिखाई दे सकता है। ओवर टू यू आंसर। Okay, thank you. Yeah. A little bit about the team. The I Know First predictive algorithm was developed by the I Know First R&D team that being led by Dr. Lipa Reutemann from the Weizmann Institute of Science in Israel, an AI expert with over 23 years of experience in research in the field of AI, machine learning, chaos theory. And in our R&D team, we have people with different background. We have PhDs, AI and machine learning experts. We have math professor from Tel Aviv University, as well as employees with the background of data science, computer science, math, statistics, and also IDF veterans, specifically from the intelligence unit. Ben Rubin, the head of our advisory, is here with us. He's going to deliver the webinar today. Ben used to work for one of the leading banks in Israel as an investment advisor. My name is Yaron Golger. I'm the co-founder and CEO of I Know First. I'm also the chairman of the Israeli Export Institute. I'm lecturing for AI and fintech at one of the leading universities here in Israel. I'm an engineer with a MBA. The I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family offices, as well as brokerage firms, and also retail clients from all over the world that's utilizing the AI in order to identify opportunities in the market on a daily basis. In this list, you can find leading hedge funds, leading banks, leading investment houses. With some of them, we have also launched the first AI-powered mutual fund that's being listed in the Tel Aviv Stock Exchange and available to the public here. And we are really proud to develop AI-powered financial products based on our AI algorithm. यस, सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आई नो फर्स्ट टीम का। किन किन लोगों ने जो है ये एआई का जो प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम सॉल्यूशन है वो बनाया है। तो डॉक्टर लिपा रोटमैन जो कि को फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट हैं आई नो फर्स्ट टीम में, एंड 23 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का। सो एक एक्सपीरियंस लोगों की टीम है, पूरी यूनिक टीम है जो R&D करके लेके आती है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि आने वाले टाइम पर मार्केट्स के लिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक ऐसे टूल्स मिले जो कि हमारी हेल्प कर सकें, क्योंकि अभी हम बाजार में क्या है, हम एक तरह से कई बार तुक्के लगा रहे होते हैं। तो ये तुक्के लगाने वाला काम खत्म हो, एटलीस्ट हमें एक रिसर्च मिल जाए जहां पर हमें पता हो कि हमें अपना पैसा हम कहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स मिल जाए, आइडेंटिफाई होके कहां पर मूवमेंट आ सकती है, उन मूवमेंट्स को हम टेक्निकली अपने अकॉर्डिंग रिव्यू कर लें, जैसे कि हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो या न्यूज़ ड्रिवन हो। तो अगर हमें फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि हमारे पास तो इंडियन मार्केट में तो फीलिंग ही आती है, अगर हमें फील हो रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है और एआई भी उसी स्टॉक को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप डबल श्योर हो जाते हो कि आपका एनालिसिस गलत नहीं है। ठीक है, और मार्केट्स हैं, मार्केट्स में आप जानते हैं कि दोनों साइड की मूवमेंट आ सकती है, बट एटलीस्ट अगर कुछ रिसर्च होके मिल जाए
कि हाँ यहाँ ये स्टॉक्स हैं जो कि अपसाइड जा सकते हैं या डाउन साइड जा सकते हैं, तो उनके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग अपने रिसर्च लगा के थोड़ा उस पर एक्सरसाइज करके हम अपने लिए स्टॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन हमने किन स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस लेनी है। तो डॉक्टर लीपा रोहितमैन, फिर मिस्टर यारोन जो कि अभी हमारे साथ हैं, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं आई नो फर्स्ट के, और ये लेक्चरर हैं जो कि एआई से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और लोगों को सिखा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप जानते ही हैं कि आगे आने वाले टाइम पे एआई जो है वो पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। हर जगह आज एआई की बात हो रही है, तो हमारे स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं, अब तो स्टॉक मार्केट में भी जो है हम एआई को आते हुए देख रहे हैं। सो मेन चीज़ है रिसर्च की, मेन चीज़ है हमारे लिए अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करने की, हमारे मैनुअल काम को खत्म करने की। अभी 1500 स्टॉक्स के ऊपर इंडियन मार्केट में रिसर्च होती है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये पता लग जाए कि भाई हमने कहाँ पर अपने पैसे को लगाना है और कहाँ पर हमें जो है वो मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। मिस्टर बेन भी हैं हमारे साथ, जो कि हेड ऑफ एडवाइजरी हैं, एनालिस्ट और एडवाइजरी टीम हेड करते हैं आई नो फर्स्ट में, और कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट हैं। पहले मैनुअल पे काम करते होते थे, आजकल एआई के ऊपर काम करके प्रेडिक्शंस एंड जो भी रिकमेंडेशंस है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। सो अगर हम बात करें आई नो फर्स्ट के क्लाइंट्स की, सो मेजर फंड हाउसेस, फैमिली ऑफिसेस, बैंक्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो कि आई नो फर्स्ट के क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड यार सर प्लीज। So National Bank of Canada, Bank of America, Finvicia, C Capital, Total Capital, मताओ, ये ऐसी फर्म्स हैं जो कि काफ़ी बड़े नाम हैं और बहुत ही अ, अच्छे तरह से आई नो फर्स्ट इन सभी की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा उतरा है और अपनी रिकमेंडेशंस एंड प्रोडिक्शंस जो है वो एआई पावर यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करता है। सो मिताओ करके एक पूरा फंड जो है वो एआई बेस्ड, एआई एक फंड मैनेज कर रहा है एक तरह से, म्यूचुअल फंड, एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो कि एआई जिसमें हमें स्टॉक पिक करके बताता है कि कहाँ पर अच्छी मूवमेंट जो है वो आ सकती है। ओवर टू यू आंसर। Thank you. The AI algorithm that you're about to see received several international awards from different respected entities, including the Geneva Wealth Tech Forum as the best wealth tech solution, from Entity Data in Japan, the UBS FinTech competition, and also the Wealth Tech 100 competition. Ben, let's continue. Here you can see several photos, and I have a very good friend that actually publishing earnings this week, so it's going to be an interesting week for NVIDIA. Here's a nice photo of him, and Ben was also was visiting India recently. And presenting the I know first predictive algorithm in India FinTech Award competition. Okay, what do we do? Basically, we are offering two solutions to our client. On one hand, we are providing them a daily prediction. We are utilizing our AI algorithm in order to generate daily forecasts that highlighting the best opportunities within the Indian market on a daily basis. So basically, you can utilize the I know first AI algorithm in order to identify the top scripts from different investment universes, the small cap, the mid caps, the mega caps within the Indian market. On top of that,
we have developed several systematic trading strategies, and we are using those strategies in order to develop AI-powered investment products. And we have recently launched the first AI-powered mutual fund that's being listed in the Tel Aviv Stock Exchange and available to the public. And in this webinar, we are going to focus on the daily predictions, on the opportunities that the AI is identifying on a daily basis, the daily forecast that we have seen on the beginning of this webinar. यस सो हम बात करते हैं जब भी बात होती है किसी भी सर्विसेज की, सो एक हमें कंसर्न होता है ऑथेंटिसिटी का कि कितना ऑथेंटिक है प्रोडक्ट या कंपनी कितनी ऑथेंटिक है. सो एक जो आजकल किसी भी चीज़ को मापने का पैरामीटर है वो ये है कि आप कितने मतलब आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं. जिसके पास अवार्ड्स होंगे वो कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. ऑब्वियस बात है अवार्ड उन्हीं को ही मिलते हैं जो कि अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं. तो अगर हम बात करें आई नो फर्स्ट की, तो आई नो फर्स्ट को लास्ट स्लाइड यार से प्लीज, अवार्ड स्लाइड. या थैंक यू. सो वर्ल्ड आई नो फर्स्ट जो है उसे वर्ल्ड टेक 100 में मोस्ट इनोवेटिव वेल्थ टेक कंपनी का अवार्ड मिला है. उसके अलावा गनेवा वर्ल्ड टेक अवार्ड मिला है, बेंजिंगा से फिनटेक अवार्ड मिला है, और इवन सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे इंडिया में भी आई नो फर्स्ट को अवार्ड मिला हुआ है. सो नेक्स्ट स्लाइड यार से प्लीज. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई नो फर्स्ट टीम जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में फंड हाउसेस में जाकर अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उसकी एफिशिएंसी को दिखाती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है, कितना यूजफुल है इस फाइनेंशियल मार्केट में. नेक्स्ट स्लाइड यार से प्लीज. सो इंडिया में भी इंडिया फिनटेक फोरम ने आई नो फर्स्ट को अवार्ड किया है. और काफ़ी जगह अगर हम बात करें एआई का जो ज़माना है आने वाले टाइम पे, आप हर जगह टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. सो एआई जो है वो इंडियन मार्केट्स में भी अपने पैर जो है वो पसार रहा है. और आई नो फर्स्ट अपने आप में एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है कि हर स्टॉक के ऊपर एनालाइज करके और स्टॉक्स प्रिडिक्ट करता है कि ये अपसाइड या डाउनसाइड जा सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये इंट्राडे भी प्रिडिक्ट करता है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में मिनिमम 3 डेज का होता है. मिनिमम 3 डेज से लेके 1 ईयर तक की प्रोडिक्शंस होती है. डिफरेंट टाइम फ्रेम होती है, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर. सो डेली फोरकास्ट आता है, डेली आपको स्टॉक्स मिलेंगे, रोज नए स्टॉक्स होंगे, बट उनका जो टाइम फ्रेम होगा मिनिमम 3 डेज का होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है आज रिकमेंड किया तो आज ही उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, बट मिनिमम 3 दिन का टाइम जो है वो लगता है. सो एआई करता क्या है, एआई अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट में 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स को रिव्यू करता है. उनकी डेली जो उनकी आज की मूवमेंट है उसको एनालाइज करता है पास्ट मूवमेंट से. ठीक है, और फिर देखता है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं इस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने में पोटेंशियल है और कौन पोटेंशियल नहीं है. तो जो पोटेंशियल है वो हमें शो कर देता है कि ये है जो अपसाइड जा सकते हैं, ये स्टॉक्स हैं जो डाउन साइड जा सकते हैं. सो अगर बात करें फंड मैनेजमेंट की, तो अगर जो हम बात कर रहे हैं S&P की, अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क लेके चलते हैं, तो बेंचमार्क का रिटर्न 73% का है और आई नो फर्स्ट का जो रिटर्न है वो 227% का है. तो 154% की आउट परफॉर्म. ठीक है, एक बेंचमार्क को 154% से बीट करना इज नॉट अ इजी गेम. ओवर टू यू अरुण सर. Thank you.
So the I Know First predictive algorithm includes 3 components. All of those components are available within the Shoonya platform. By using the first component, it's possible to identify the most promising investment opportunities from the Indian market, from the small caps universe, from the mid caps universe, from the large cap universe. On a daily basis, the model is being updated and you are receiving the bottom line, the top stock picks for the upcoming days. The second component is basically a stock market intelligence component. It's possible to utilize it in order to identify the best sectors and indices from the Indian market, and also from which sectors and indices we should basically avoid. And the last component is also super interesting. It's providing us customized forecasts based on each client portfolio. So if you are already holding specific scripts, the AI can assist you and basically to analyze your existing portfolio. And by using those 3 components, it's possible to optimize the portfolio on a daily basis. So how we do it so yeah, please. No issue, Yaron sir. You please carry on. Well, okay. Yes. So how we do it on a daily basis, the AI algorithm is collecting quantitative data sets that are coming from the entire financial market. We are utilizing data that's coming from from over 50 global equities market. We are, of course, including India. We are collecting data that's coming from the interest rate environment, the commodities market, the currency market, even the cryptocurrencies market. Everything is, we are using all those data sets. We are adding the daily data to our database. We are managing database with historical data. And around the clock, the algorithm is learning from the new data, learning from the combined data, and basically building the complex network that exists in the financial market. There are thousands of correlation sets in the market. And before each trading day, we are generating an updated forecast for the different timeframes that you see on the right. The short term, the 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and even 1 year. And of course, the algorithm is learning from each forecast, learning from the successful forecast and also from the failures, and it's part of the input that we are utilizing for the next predictions. Yes. So हम बात करते हैं आई नो फर्स्ट काम किस तरह से करता है, मतलब एआई तो है, एआई काम कैसे करेगा। तो एआई जो है, एआई करता है सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उन्हें फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब वो कैसे होती है, अब मान लो इट्स बेस्ड ऑन न्यूज, ठीक है, आज के टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, आज की मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड कर सकता है कि कहाँ किन स्टॉक्स के अंदर जो है वो सबसे बेस्ट मूवमेंट्स आई है, और आगे आने वाले टाइम पे वो मूवमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद एआई जो है वो पूरे लीडिंग सेक्टर्स, इंडाइसेस और जितने भी एसेट क्लास हैं सबके ऊपर अपना एल्गोरिथम रन करता है, ठीक है। और एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करता है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करता है। जो आपका पोर्टफोलियो, जो आपकी होल्डिंग्स है, उसके ऊपर भी एआई काम कर रहा होता है। आपकी होल्डिंग्स को वॉच करता है, कौन से स्टॉक्स हैं आपकी होल्डिंग के अंदर जो कि खराब है या गिर सकते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। इन सारी चीजों के ऊपर एआई जो है पूरी तरह से अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको देता रहता है, ठीक है। अगर आप शून्य पर भी एआई का यूज कर रहे हो तो आपकी जितनी भी होल्डिंग्स है उसके ऊपर आपको डेली आपको प्रेडिक्शंस देखने को मिलेंगी। आप उसका जो भी सिग्नल्स हैं, जो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी है, उनको वॉच कर सकते हो कि वो बढ़ रहे हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो इट मीन्स गुड, अगर गिर रहा है तो आप उसके पीछे लॉजिक देख सकते हो कि उसके कारण क्या है गिरने का, या उसके ऊपर कोई नई प्रेडिक्शंस तो नहीं आ रही है, ठीक है। आपके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का काम भी एआई कर सकता है, फिलहाल इंडिया में नहीं करता है, लेकिन यस बाहर के ग्लोबल इंडाइसेस पर ये चीजें जो है अब होना शुरू हो चुकी है,
धीरे धीरे इन फ्यूचर एआई आपको इंडिया में भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए दिखाई देगा. नेक्स्ट आइडिया आंसर प्लीज. सो आई नो फर्स्ट क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा वेंडर्स के साथ सारा डेटा लेता है, ठीक है. उसके बाद 15 ईयर के स्टॉक डेटाबेस को, जो शेयर जिसको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनका 15 साल का, और जिनको जितना भी टाइम हो रखा है, मतलब इनिशियल स्टेज से अप टू 15 ईयर्स का डेटा उसका देखता है. उसके बाद प्रिडिक्शन साइकिल चलाता है, लर्निंग एंड प्रिडिक्शन साइकिल है. उसके बाद अपने रिजल्ट देता है. अब क्या है, ये आप जो एआई देख रहे हो, एआई जो मॉडल होते हैं वो सेल्फ लर्निंग मॉडल होते हैं. ये क्या करते हैं, खुद से सीख रहे होते हैं. अगर इसने बोला कि किसी स्टॉक के अंदर मूवमेंट अपसाइड की आ सकती है और नहीं आई, ठीक है, तो इसे पता है मैंने अपसाइड बोला था बट अपसाइड गया नहीं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये उसके ऊपर अपने आप काम करने लग जाते हैं. तो फिलहाल अगर हमने जैसे बोला कि आपको स्टॉक ये बता देगा कि ये अपसाइड जा सकते हैं, आपने अपना एनालिसिस भी करना है. अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो 15 स्टॉक 10 स्टॉक इसने एआई ने मेरे को दिए हैं, इनके ऊपर मैंने काम करके देखा और ये 3 मुझे लग रहे हैं कि अपसाइड जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या हुआ, आपके पास सिर्फ 3 स्टॉक है, आपने 15 में से 3 निकाले. अभी यही 3 स्टॉक देखने के लिए आपको 1500 स्टॉक्स के ऊपर एनालाइज करना पड़ता. वो पॉसिबल था आपके लिए? नहीं था. तो इसलिए क्या है, हमें एआई जो है स्टॉक्स बता देता है कि ये स्टॉक्स हैं जो अपसाइड या डाउनसाइड जा सकते हैं, ठीक है. तो फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं एआई की, तो आपको डेली 10 स्टॉक्स, इसके अलावा जो है हमें अदर स्टॉक्स के ऊपर भी प्रिडिक्शंस देखने को मिल जाती है असेंडिंग ऑर्डर में. जो सबसे ज्यादा ऊपर होंगे वे आर द टॉप 10 स्टॉक्स जो कि अपसाइड जा सकते हैं, और 10 स्टॉक्स आपको डाउनसाइड जाते हुए दिख सकते हैं. तो 10 स्टॉक फॉर अपसाइड, 10 स्टॉक फॉर डाउनसाइड इन ईच टाइम फ्रेम. हर एक टाइम फ्रेम में हर एक जितने भी आपको ये दिखेंगे, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी में दिखाई देंगे. तो 10-10 स्टॉक्स आपको, 10-10 स्टॉक्स इन ईच कैटेगरी ऑफ अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट, ठीक है. फिर आपको एआई पावर्ड प्रिडिक्शन मिलती है कि ये 10 स्टॉक्स ये वाले अपसाइड के, ये डाउन साइड के. तो जो प्रिडिक्शन मिलती है मिनिमम 3 डेज के लिए होती है. 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना और 1 साल. 3 दिन में ऊपर जाएगा जी, 7 दिन में जाएगा जी, 14 डेज में जाएगा जी, 1 मंथ में जाएगा, 3 मंथ में जाएगा, या 1 ईयर में जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से एआई जो है हमें रेगुलर बेसिस पर डेली आपको इसके जो अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं. रोज आपको आपके स्क्रीन पर नए स्टॉक्स दिखाई देंगे. कुछ पुराने स्टॉक्स भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल और हो सकता है उनका पोटेंशियल बढ़ रहा हो. तो रेगुलर बेसिस पे कई स्टॉक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स जो होंगे वो दे आर कीप ग्रोइंग, मतलब वो बढ़ भी रहे हैं, उनके आपको प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. Over to you, Alan, sir. Okay, thank you. In terms of the technology, we are combining different advanced AI approaches into one AI algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural network, genetic algorithms, supervised and reinforcement learning. And the goal is basically to separate and to focus on the most predictable assets from each market. So basically, we are taking the entire Indian market and we are separating and focusing on the most predictable scripts on a daily basis. And from this investment universe, we are identifying the best opportunities for the upcoming days. So if we take in the entire Indian market, we are applying our technology on top of this universe. Then we are focusing on the most predictable stocks, most predictable scripts. We are creating ranking of all the stocks based on their expected upside. And then we are identifying the top scripts from each investment universe, small caps, mid caps, for the different time frames. The best scripts for the short term, the best stocks for the midterm, and also the best scripts for the long term. And this is being updated every day on the Shoonya platform. So when you're opening your computer in the morning, or your PC or your laptop or your mobile device in the morning, you are receiving already the best opportunities for the upcoming days, every day, basically.
यस। सो हम जो बात कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो काफ़ी सारे क्वेश्चन से आ रहे हैं कि इंट्राडे है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो इट्स नॉट अ इंट्राडे प्रोडक्ट, ठीक है। मिनिमम 3 डेज का बताता है, 3 दिन से लेकर आपको 1 साल तक की प्रिडिक्शंस देखने को मिलेगी। और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एआई एक्चुअली में काम कैसे करता है। मतलब अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम आपको उसकी एक नॉलेज भी दे रहे हैं कि वो काम किस तरह से करता है, ताकि कल को आपको ये ना रहे कि मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि इसमें होता क्या है। अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, आप कोई गाड़ी भी लेते हैं, तो उसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होती है कि उसकी क्या फीचर्स हैं, उसके कितनी एवरेज है, क्या उसका माइलेज है, हर एक चीज़ आपको उसकी नॉलेज होती है ना, तब आप कोई चीज़ लेते हैं। तो यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देने की जो कि आपकी हेल्प कर सकता है आपके क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, पैसा चलता है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में हेल्प कर रहा है, तो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मुझे तो जरूरी है कि भाई मैं क्या खरीद रहा हूँ, मेरे को उसकी पूरी नॉलेज हो। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आई नो फर्स्ट की, तो हमें आपको ये देना है कि आई नो फर्स्ट एग्जैक्टली काम करता क्या है और कैसे करता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई नो फर्स्ट क्या है, एआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोच रखता है और मोस्ट रिसेंट रिसर्च के ऊपर काम करता है। जो भी मतलब एक्चुअल में मार्केट में आज हुआ है उसी चीज के ऊपर आपको रिसर्च करके देगा। और ऐसा नहीं है क्या, अगर हम एज अ मैनुअल डेटा वैलिडेशन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के अंदर 1500 स्टॉक्स देख सकता हूँ, ठीक है, मैं 150 भी नहीं देख सकता। तो मेरे लिए ये जरूरी है कि भाई कोई मेरे को स्टॉक एनालाइज करके दे दे और मेरे को बता दे कि यार कहाँ कहाँ पर अपसाइड या डाउनसाइड हो सकती है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो एआई जो है वो मेरे लिए वही काम कर रहा है। एआई मुझे ये बता दे रहा है कि ये स्टॉक्स है जिसमें अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट आ सकती है। आप अपनी रिसर्च करो और उसके बाद आपको अगर ठीक लगता है आप अपनी पोजीशंस ले लो। तो सेल्फ लर्निंग है, जैसा मैंने आपको बताया। एआई ने अगर बोला है अब जाएगा, आप नहीं गया तो ये खुद सीखेगा कि क्यों नहीं गया, ठीक है। अब क्योंकि इसने तो आपको 10 स्टॉक देने हैं, आपने 10 में से 3 सिलेक्ट कर लिए कि ये 3 जा सकते हैं, 7 तो आपने ही रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो जब 7 आपने रिजेक्ट किए, हो सकता है उसमें से 2 और चल जाए, क्योंकि आपने बोला था ना। आप हमें क्या, हम 1500 स्टॉक का 15 साल का डेटा नहीं देख सकते, ये देख सकता है, ये अपने आप काम कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके बताए हुए स्टॉक्स के ऊपर अपनी पोजीशंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया कि अपसाइड जा सकता है, 3 स्टॉक्स हमने बोला हाँ अपसाइड चले जाएंगे, 3 वो चले भी गए। उसके अलावा 3-4 स्टॉक्स और चले गए, लेकिन जो 2-3 नहीं गए उनके ऊपर इसने काम करना है, ये सेल्फ लर्निंग में चलेगा। लास्ट साइड यार सर प्लीज। तो ये अपने हिसाब से उसको लर्निंग करेगा और अपने आप को और ज्यादा एडवांस करेगा कि मैंने ये चीज मिस कर दी है, ये चीज ऐड करना रहती थी, या ऐसा करने की वजह बाद भी जो है मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जेनेटिक एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है, जो डेटा सेट है, सिस्टम की ट्रेनिंग ट्रेनिंग हुई हुई है, हमसे गलती हो सकती है, मैनुअल चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई एक पैटर्न ही देख रहे हैं, फ्लैग पैटर्न देख रहे हैं, तो फ्लैग पैटर्न थोड़ा सा बनने में अभी अधूरा है, लेकिन वो बना नहीं है, पर हम कह रहे हैं यार ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि हमसे ये गलती अधिकतर हो जाती है कि चलो चैनल नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं टूटा तो टूट जाएगा, ट्रेंड तो ऐसा ही लग रहा है कि चैनल तोड़ देगा, पर वो नहीं तोड़ता, तो उसमें फंसा रह जाता है या नेगेटिव साइड की मूवमेंट आ जाती है। या फिर अगर कोई ट्रेंड लाइन है, हम कह रहे हैं यार ये तो ब्रेक हो जाएगी, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, पर वो चलने की ना चलने की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। ये इसके लिए ऐसा नहीं है कि हो सकता है, इसके लिए तो ये हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसने बोल दिया कि हाँ हुआ है तो फिर हुआ है, ठीक है। तो सुपरवाइज है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है, पूरी तरह से आपको जो ये प्रिडिक्शंस दे रहा है वो इसने सीखा है और उसके ऊपर खुद खुद ने भी अपने आप के ऊपर लर्निंग की है और आपको जो है रिजल्ट निकाल के दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड आराम से प्लीज। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज करके आपके प्रिडिक्टेबिलिटी फिल्टर लगाता है और मोस्ट प्रिडिक्टेबल स्टॉक्स जो होते हैं वो आपने दिखाता है, सिग्नल फिल्टर लगाता है, रैंकिंग करता है स्टॉक्स की, और उसके बाद हमें टॉप स्टॉक्स देता है 6 टाइम फ्रेम में, जो कि स्टार्ट होता है 3 डेज से, मिनिमम 3 दिन का आपको ये अपने प्रोडिक्शंस दिखाता है, 3 days to 1 year।
Over to you, sir. Thank you. Okay, Ben, the stage is yours. Thank you. Let's talk about a little bit the forecasts and how it looks like. We can see the forecast comes in the shape of a heat map. The green cells represent long position, while the red ones represent the short position or sell position. In each and every cell, we have two indicators that the algorithm produced. One is the signal. The signal is actually presenting the predicted movement of the asset or the potential movement of the asset. It's our internal index, and it's ranking the entire investment universe from the asset with the strongest signal that we can find in the top left of each and every table, and going down to the right up until the bottom right symbol that we can see here, for example, NTPC, which has the most strong negative signal in the forecast. And the signal actually help us to rank this investment universe from the signal from the stock with the strongest signal, and going down to the right to the one with the lowest signal. The second indicator that we use is the predictability indicator. It's actually help us to understand how good the algorithm can forecast the specific assets. It moves from 0 to 1, while 0 represents 50% probability that the asset will move to the predicted direction, while 1 represents 100%. So in both cases, we are looking for the highest values in the forecast, both signal, high value of the signal and high value of the predictability. We tend to give more weight and to the predictability indicator. I think we think that is a little bit more important than the signal one, so we tend to give him more weight. So using those two indicators, we know how to choose the best stocks out of the forecasts. सो अब बात होती है सबसे मेन हमने यूज कैसे करना है आई नो फर्स्ट में। सो आई नो फर्स्ट जो डेली प्रेडिक्शंस देगा वो एज अ हीट मैप देगा। ये जो आपको हीट मैप दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसे ही हीट मैप के थ्रू आपको प्रोडक्शंस आएंगी। सो इसके अंदर एक तो स्टॉक का नाम होता है और साथ में होते हैं सिग्नल एंड प्रेडिक्टिविटी। तो सिग्नल जो है वो मूवमेंट को शो करता है कि कितने सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। जितना अच्छा सिग्नल उतनी अच्छी हमारी स्टॉक के ऊपर प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं। सो अब प्रेडिक्शंस को कैसे रीड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रेडिक्शंस की जो पहले तो जो सिग्नल का स्केल है वो कितना भी हो सकता है ना, हो सकता है सिग्नल 20 का भी हो सकता है सिग्नल 400 का भी हो। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो सिग्नल के साथ हमें मैच करना है प्रेडिक्टेबिलिटी को। सो जो सबसे ज्यादा टॉप सिग्नल स्टॉक होगा वो सबसे टॉप पर होगा, ठीक है। अब हमें देखना है प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर सिग्नल हमारे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है 209 का अगर हमें सिग्नल आ रहा है, ठीक है, साथ में हमें जो प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई दे रही है वो 0.49 की दिखाई दे रही है। अब प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या कहना है, प्रेडिक्टेबिलिटी ये कहती है कि अगर वो 0 से 1 के बीच है तो 1 के जितने करीब है, ठीक है, वो उतना ज्यादा उसके ऊपर जो कोरिलेशन है, ठीक है। अब अगर सिग्नल 209 का है तो इस डिक्शन में जब 209 का सिग्नल होता है तो इसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है अभी 0.49% की आ रही है। इट मींस इस कोरिलेशन पर इतनी बार, मतलब अगर 10 बार प्रेडिक्शन हुई तो 5 बार जो है वो स्टॉक्स ने सेम साइड मूव दिया है जिस साइड का एल्गोरिथम में बोला है। यही अगर 0.75 होता, 0.85 होता, 0.95 होता या 0.99 होता तो मतलब जितना 1 के क्लोज है उतने ज्यादा हायर चांस है कि वो अगर बात हुई है तो उसके बीच में कोरिलेशन है तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें सिग्नल का भी ध्यान रखना है, सिग्नल अच्छा हो और प्रेडिक्टेबिलिटी भी उसके साथ साथ बहुत अच्छी है। तो सिग्नल एंड प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों हमें जो है वो हेल्प आउट करती है स्टॉक्स को फाइंड आउट करने में किसकी मूवमेंट तो कितनी ज्यादा कोरिलेट करती है। ओवर टू यू मैम।
Okay, so in the home screen of the Shoonya platform, we can find all the stocks that the algorithm actually suggests to buy and to sell. We can see it in the red cells and the green cells. And also in that screen, we can find three size of the stocks. We can jump through from the large cap to the mid cap or choose some small cap if we're interested in trading in the small cap. And in each stock cap, we can find also different time frames from 3 days to 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. And each and every one of the time frames, it has its own forecast. For example, here we can find the 1 month forecast. If we'll jump in and press on the 14 days, we'll find the best stocks to buy in the next 14 days. In the bottom left of the screen, we can find different numbers and arrows that we can go through past performance of forecast and see what some of the stocks made and done in the last few days or month. And we also can trade through this platform by pressing the buy and sell buttons, and actually directly from the I Know First section in the Shoonya platform, we can also buy and sell stocks. So all of these options are available in the I Know First section in the Shoonya platform. Another feature that we have in the I Know First section is the indices forecast. We can find forecasts of plenty of indices from the Indian market, again, for different time frames. If it's 3 days up until 1 year, you can see the time frames here, and you can jump through the time frames just by clicking on the time frame that you're interested in. And this is another feature that the Shoonya platform are giving to our investors. Also a forecast for the entire Indian indices. Over to you, Kashif. जो डेली फोरकास्ट है वो मैंने आपको बताया किस तरह से रीड करना है। अब हम बात करते हैं हमें जो डेली फोरकास्ट आता है वो आता कैसे। ठीक है, तो हमें 6 टाइम फ्रेम में फोरकास्ट आता है। मैंने आपको पहले भी बताया ये इंट्राडे के लिए नहीं है, मिनिमम 3 डेज के लिए होता है। 3 दिन से लेके 1 साल, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 1 ईयर। ठीक है, इतने टाइम फ्रेम्स में आपको मिलेगा। और 3 आपको कैटेगरी दिखाई देती है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। 10-10 शेयर आपको हर कैटेगरी से लॉन्ग साइड के दिखाई देंगे जिनमें अपसाइड पोटेंशियल आ सकता है। 10 शेयर आपको हर कैटेगरी में वो दिखाई देंगे जिसमें डाउन साइड का पोटेंशियल है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि आपको रिसर्च तो अपनी करनी है। ठीक है, अब आप आई नो फर्स्ट आपके लिए स्टॉक्स फाइंड आउट करके दे देगा। 1500 से ज्यादा स्टॉक्स के ऊपर ये रिसर्च करता है और उसमें से टॉप स्टॉक्स हमें निकाल के देते हैं। ठीक है, अब हम उन स्टॉक्स के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, जो स्टॉक्स हमें ठीक लग रहे हैं उसके ऊपर हम अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो स्टॉक्स के साथ साथ इंडाइसेस पर भी आपको जो है वो अपना फोकस दिखाता है। यहाँ पर अभी हम आपको जो डेटा दिखा रहे हैं वो कुछ कंप्लायंस चैलेंजेस की वजह से हमें पुराना डेटा आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि एज पर सेबी हम फ्रेश डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। बट यस, जब आप अगर इसको पहले लास्ट वेबिनार तक की अगर हम बात करें तो हमारा जो आई नो फर्स्ट का मॉडल था वो मार्केट्स के डाउनसाइड प्रेडिक्ट कर रहा था। ठीक है, इसके पहले भी हमने जितनी बार भी वेबिनार किए हैं हर बार हमने इसके प्रोमिनेंट रिजल्ट्स जो हैं वो अपने हर वेबिनार में शो किए हैं। सो हमारा इस वेबिनार को करने का रीज़न यही होता है कि हम आपको इसके रिजल्ट्स दिखा सकें कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। पर अब जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो रेगुलेटर है वो सेबी है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम लोग फ्रेश डेटा यूज़ नहीं कर सकते, मिनिमम हमें 3 मंथ ओल्ड डेटा यूज़ करना है। सो अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सब पुराने डेटा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी स्टॉक्स या इंडाइसेस, वो हम फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। सो फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमें फोकस दिखाई दे रही है
स्क्रीन के ऊपर ही हम इंडाइसेस पर देख रहे हैं। दो तरह की फोरकास्ट होती है, स्टॉक्स पर एंड इंडाइसेस पर। आपका नजरिया है कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए अगर आईटी सेक्टर की है, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्टॉक अगर हम बात करें कि एबीसी स्टॉक की अगर कीमत बढ़ सकती है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग है या उसके टेक्निकली काफ़ी साउंड है, तो आप स्टॉक्स के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको इंडाइसेस पर भी आईटी सेक्टर का जो इंडाइसेस है वो अच्छी बढ़त दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बता रहा है कि यहाँ पर भी अपसाइड का पोटेंशियल है। आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं, एक उस पर्टिकुलर सेक्टर का, एक उस पर्टिकुलर शेयर का। दो कंफर्मेशन आपको एआई की साइड से मिल गए। उन प्रोडिक्शंस का यूज करके आप अपनी पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ओवर टू यू मैन। Yeah, I saw a few questions about the red cells in the forecast. So the red cells represent a short position or stocks that I should sell. That's what it represents. And of course, the forecast is updated every morning before the trading start, and you have the best opportunities on a daily basis from the algorithm for each and every time frame that you can find on the top right of the screen. So that's about I saw some question about the forecast, so I thought to make it clear. And another interesting feature that we have in the Shoonya platform is the holding section. In that specific place that we can find all our holdings, all the stocks that we buy, and we have an AI prediction on those stocks for different time frames as well. We can see the time frames again in the top right of the corner. But for each and every asset that I buy from the Indian market, I'm getting the signal and predictability in the holding section, and I can follow and see the situation and the position of my stocks. For example, if I'm seeing some stock that I bought getting a red signal, I know I should probably sell this stock, and I can see the predictability of the algorithm of each and every stocks in the holding section. So it's a very important and interesting feature that we have, that the algorithm is actually is following your portfolio and giving you a daily basis on your portfolio if you should buy or sell more of the stocks that you have in your portfolio. यस, सो अभी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं आई नो फर्स्ट के बारे में, सो जैसा मैंने आपको बताया था कि आई नो फर्स्ट जो है वो हमारी होल्डिंग्स का भी ध्यान रखता है। जो स्टॉक्स हमने होल्ड कर रखे हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम पर, उसके बारे में भी हमें जो है वो प्रेडिक्शंस दिखाता है। तो जितनी भी हमारी होल्डिंग होती है वो सारी होल्डिंग जो है हम चेक कर सकते हैं आई नो फर्स्ट के पोर्टल पर, शून्य प्लेटफॉर्म पे ही। तो हमारी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर ये अपने प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स जो है वो दिखाता रहता है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेरी होल्डिंग्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर मुझे हर होल्डिंग के आगे सिग्नल और उसकी प्रेडिक्टिविटी दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं। सो आपको आपका पोर्टफोलियो जो चल रहा है, जो आपकी होल्डिंग्स है, उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसे शेयर्स जो कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, प्रिडिक्शंस जिनके ऊपर दिखाई जा रही है कि अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट आ सकती है, वहां पर भी आप उसका यूज कर सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो को जो मतलब मैं मैनेज करता हूँ ऑब्वियसली आई नो फर्स्ट के थ्रू ही मुझे इसके ऊपर काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मुझे अपने पोर्टफोलियो को सेव करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। कई बार मुझे नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो मैं अपनी पोजीशंस को अदर पोजीशंस के साथ हेज करके भी अपने इन्वेस्टमेंट को बचा लेता हूँ। और जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिल रही है, सो ऐसे टाइम पर भी आई नो फर्स्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने का। और ये किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो
आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इट्स जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस, आप लोगों को दिखाने के उद्देश्य से है कि आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से एआई जो है वो ऑप्टिमाइज करता है और अपने सिग्नल्स एंड प्रेडिक्टिबिलिटी उसके ऊपर दिखा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, Yeah. सो Yeah, so of course the I know first predictions are available on the desktop and the app feature. You can use it through your desktop or the application and see the best opportunities on a daily basis from your mobile device or from your home computer. And all of these features that we saw that the I know first is actually suggesting you is in a special webinar sale. We suggest, of course, the daily forecast for the 6 time frames, all the top picks from the Indian market. If it's a large cap, if it's a mid cap, even a small cap, you can get the sectors and, of course, the customized AI forecast for your holdings in the portfolio section. All of this is available for 799 Indian rupee per month in a special price that we give you today for this special webinar. So again, all the best forecasts and opportunities for 6 time frames for different cap size, if it's a large cap, mid cap, or small cap stocks. And of course, all the indicators, all the sectors and indices for the Indian market, plus your portfolio forecast. All of this you can get for 799 Indian rupee per month, and now available, of course, in the Shoonya platform. सो आई नो फर्स्ट आप शून्य के डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, डेस्कटॉप और एप्लीकेशन दोनों ही वर्जन्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे भी आप आई नो फर्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप में भी आपको हब में जाकर जो है IKF का ऑप्शन दिख जाता है, वहाँ से भी आप आई नो फर्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे मोबाइल पर भी और डेस्कटॉप पर भी। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक स्पेशल वेबिनार सेल है 799 पर मंथ, इसकी जो प्राइस है इट्स इंट्रोडक्शन प्राइस, सिर्फ आज ही के लिए है। डेली फोकस आपको देखने को मिलेंगे 6 टाइम फ्रेम में। टॉप स्टॉक्स पे कहूंगी इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पर सेक्टर और इंडाइसेस का पूरा एनालिसिस होगा। साथ ही साथ हमारी जो होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर भी एआई जो है अपना वो पूरा आपको फोकस दिखाएगा कि उसकी क्या प्रेडिक्शंस हैं एंड आगे आने वाले जो सिग्नल्स दिखाए गए हैं वो क्या है। सो इट्स वन टाइम ऑफर 799 पर मंथ, आप लोग यूज कर सकते हैं आई नो फर्स्ट के फीचर को शून्य ऐप पर। और ये जो प्राइसिंग है, अगर आप आई नो फर्स्ट से डायरेक्टली लेते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड $200 अ मंथ, बट स्पेशली शून्य क्लाइंट्स के लिए ये प्राइसिंग जो है वो जस्ट 799 पर मंथ की है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट की और या फिर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की, तो यस, आई नो फोर्स जैसा टूल जो है वो हमारी हेल्प करता है ये प्रोमिनेंट स्टॉक्स पता करने में जो कि आने वाले टाइम पर अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट दे सकते हैं। और ऑब्वियसली हम एज अ ट्रेडर या फिर चाहे हम फुल डे ट्रेडर ही क्यों ना हो, कोई भी मैनुअली व्यक्तिगत तौर पे 1500 स्टॉक 1500 स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर सकता एक दिन में, बट एआई आपके लिए डेली 1500 स्टॉक्स और उनसे ज्यादा पर नजर रखता है। और टॉप स्टॉक्स जो कि आपके लिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं, उन स्टॉक्स को आपके लिए प्रेडिक्ट करके लेके ओवर टू यू। Course, if you know if you want to know the best step 10 script for this week, you can scan the QR code and watch the script right now. So you can use your mobile phone and you can scan and see the best stocks for the next week in the Indian market.
you can do it now. And of course, let's go for some example from past predictions that we have. Here we can find a forecast for the small cap universe in a 3 days time frame, and we can see that the algorithm give us those stock to focus on for the next 3 days. And we can see that in the first place, with the strongest signal, we have HEC infra projects that made 15% in a 3 days time frame. This prediction is from November 2024 for a 3 days time frame, and we can see this beautiful performance of the first stocks that have the strongest signal. And in the same way, we can find the other stocks that the algorithm provide us, and the returns here to the right. And we can see that the average of this forecast was 3.8%, while the benchmark made the 0.11% in the same time frames of the 3 days. In another forecast for a 7 days time frame, again, we can find the algorithm is identifying the best stocks to hold for a 7 days time frame. That was generated on October 13, and we can see the stocks that the algorithm actually provide us, and we can find the return to the right. For example, 63 moons moved by 17%, almost 18% in a 1 week time frame after it was suggested by the algorithm. And we can see that the second stocks, for example, in this forecast, was Steps Industries, which made 13% in a 7 days time frame. Again, the average was 7.5, while the market didn't really move at that time. So if you want to beat the market and outperform the market, you can use the forecast that we see here in the Shoonya app. Over to you, Keshe. Scanner ban please. Scanner. यस सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ओल्ड डेटा के ऊपर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम कंप्लाइंस इशू, और एज पर सेबी हम लोग फ्रेश डेटा यूज़ नहीं कर सकते। सो अभी आप लोगों को सिर्फ एक डेमो कराने के लिए टॉप 10 स्क्रिप्ट्स जो कि इस वीक के ऊपर बेस्ड होंगी एआई प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम से, तो आप उन स्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं। इस स्कैन कोड को स्कैन करके आपको स्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएंगी, और आप अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं किस तरह की प्रेडिक्शंस आपको मिलती हैं मार्केट से रिलेटेड एआई पॉइंट प्रेडिक्शंस। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, सो आप देख सकते हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर नवंबर की प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, 1 नवंबर को कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपको ग्रीन सिग्नल दिया गया था। सो वहाँ पर एचएलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉक ने 15% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। ऐसे ही डिफरेंट स्टॉक्स हैं, किसी में आपको 10% के रिटर्न, किसी में 5% के, 4% के। मतलब अगर हम उस टाइम की बात करें बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क का जो रिटर्न था वो 0.11% का था, और जबकि आईकेएफ का जो एवरेज था वो लगभग 4% का था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ऐसे ही हम 7 डेज की बात करेंगे। वो 3 दिन का प्रोडिक्शंस था। 7 डेज में हमें जो प्रोडिक्शंस दी गई थी वो दी गई थी, अगर किसी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं 17%, 3% से लेकर 17-18% तक के रिटर्न हमें जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर उन 7 दिनों में बीएससी का जो सेंसेक्स का जो बेंचमार्क रिटर्न था वो 0.01%, मतलब फ्लैट था। और आई नो फर्स्ट की बात करें तो 7.5% के रिटर्न जो है आई नो फर्स्ट हमें दिखा रहा था 7.5% के रिटर्न। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह से जून 2024 में
हमें जो रिटर्न देखने को मिले थे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर 0.61% से लेके 23% तक के जो थे हमें रिटर्न दिखाए थे आई नो फर्स्ट में। और यहाँ पर भी आई नो फर्स्ट ने बेंचमार्क को 14 डेज की टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं बीट किया था। नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, here we can find around the 14 time frames, and you can see the forecast for these 14 days. It means that the algorithm suggests to hold those stocks for at least 14 days. We can find the return to the right of 23%, with the first stock persistent, and the other stock here with 13%, 11, and even 7.669. And this concludes the shorter time frames of 3 days, 7 days, and 14 days. If some of the investors are more interested in the shorter time frames, they can pick those time frames. But in the same way, we have a longer time frames of 1 month, 3 months, and 1 year for more of a swing traders, for a longer period of investment. For this example, we can find in the 1 month time frame for the large cap universe, a forecast that was generated on the 4th of June 2024, and we can see the performance of those stocks. For example, Deepak Nitrate performed 24%, almost 25 in a 1 month time frame, and we can see here that the signal and the predictability values are much higher than the lower time frames, than the shorter time frames. And the higher the values, the better the forecast. And also, as I mentioned, we are always trying to focus on the high predictability levels, stocks that hold high predictability values. And we'll try to focus on those stocks. And in the same way, for the 3 months, we can see here that the signals are even higher, and the predictability can be in higher values. And we, in the same way, we can find that the returns for those stocks in the small caps universe was really impressive, as a 55% in 3 months, or 48% in a 3 month time frame. So try to focus on the higher and like the longer time frames of 1 month, 3 months, and see the best stocks with the best predictability, and try to focus on them for high performance. And in this specific forecast, we can see that the forecast almost doubled the benchmark performance and made 16%, while the best made around 10%. And in the okay, let's go to you, Keshav. सो अगर हम लोग जैसे अगर परफॉर्मेंस को देखें, पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, दीपक नाइट्रेट के स्टॉक्स के अंदर हमें 4 जून 2024 को यस हम पुराना डेटा दिखा रहे हैं ड्यू टू सम कंप्लायंस चैलेंजेस, बिकॉज सेबी अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आपको फ्रेश डेटा दिखा सके। अदरवाइज अभी तक जितने भी हमने वेबिनार किए सभी पे हमने फ्रेश डेटा की बात करी, बट ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है जहाँ पर हम आपको पुराने डेटा के ऊपर दिखा रहे हैं। तो पुराने डेटा पे अगर हम आपको दिखाएं तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर लार्ज कैप स्टॉक के अंदर हमें जो प्रोडिक्शंस थी वो कुछ इस तरह से थी। दीपक नाइट्रेट के ऊपर हम देख सकते हैं 25% के रिटर्न, बट 10 स्टॉक 10 के 10 ने आउट परफॉर्म किया है, 5% से लेकर 25% तक के रिटर्न दिखाई है 1 महीने के अंदर। और उस टाइम बीएसई की बात करें तो सेंसेक्स ने 11% के रिटर्न दिए थे, और आई नो फर्स्ट की एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज जो आई थी वो 13% की आई थी। तो इस तरह की एवरेज जो है वो आई नो फर्स्ट पे आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप स्टॉक के 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, और 15 अप्रैल 2024 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने में 10% से लेकर 55% तक के रिटर्न जो है स्टॉक्स में यहाँ पर दिखाई है। 15 अप्रैल को ये स्टॉक सजेस्ट किए गए थे, और उसके पूरे 3 महीने बाद जो है यहाँ पर हमें
ये रिटर्न्स दिखाई दिए थे। और इस बीच में बीएसई सेंसेक्स ने 10% की रिटर्न दिखाई थी और आईकेएफ का जो एवरेज था, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 16.34% का था। नेक्स्ट स्लाइड देन प्लीज। Okay, so we saw the stocks Solex that we're seeing with 55%. That was this specific forecast was generated on 15th of April 2024. But I also wanted to talk about the timing of the algorithm when it gives us the timing that it gives us the stock is advised, and we can see Solex was in the forecast on the 15th of April, as we saw, and that's in the chart comes around at this point right before the big jump, and we can see that in this specific time frame of 3 months, the stocks made 55%. You can see it soared up until the 15th of July, again compared to the benchmark that made almost 10%. And of course, the 1 year time frame, in the same way, we can find the best stocks to hold for a period of 1 year. You know, as we saw Palantir in the beginning of this forecast, in this webinar, this 1 year forecast has the highest values of signals and the highest predictability values, and it's highly recommended to use this time frame for longer investments. And we can see here in this example, the stock FSL, that this forecast was generated on November 7, 2023, for a 1 year old. And this prediction made 138% in FSL. And if we want to check the timing that the algorithm gave this forecast, we can find it right here. We can see in the chart, we saw a little that the stock went down a little bit, didn't make any significant move, and then after the algorithm identified this opportunity, we can see FSL soaring in this year and making a 138% in this specific time frame of 1 year. You can see that the benchmark made 22% in the same time. अगर हम बात कर रहे हैं सोलेक्स के स्टॉक की बात करते हैं। 15th ऑफ अप्रैल को ये स्टॉक 3 मंथ्स के लिए सजेस्ट किया गया था। 3 महीनों में जो बीएसई सेंसेक्स को हम एज अ बेंचमार्क मानेंगे, तो एज अ बेंचमार्क जो है सजेस्ट किया गया था, तो बेंचमार्क के साथ 10% का रिटर्न आया, और जबकि सोलेक्स की बात करें तो हमें 55% से ज़्यादा की रिटर्न यहाँ पर इस स्टॉक्स में देखने को मिली। और स्टॉक जो सजेस्ट किया गया था वो सजेस्ट ऐसे पॉइंट से किया गया था जहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की प्रेडिक्शंस जो है वो हमें एआई से देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगले स्टॉक अगर बात करें तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 7th of November 2023 को कुछ स्टॉक सजेस्ट किए गए थे। अगर हम बीएससी की बात करते हैं तो एक साल में 7 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2024 तक की जो एवरेज थी सेंसेक्स की, वो 22% का रिटर्न था। और वहीं आई नो फर्स्ट की बात करें तो एवरेज आउट करके 44% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले थे। जो भी स्टॉक्स आई नो फर्स्ट ने एक साल पहले सजेस्ट किए थे, 10% से लेकर 138.77% तक के रिटर्न हमें इसमें देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिखाई दी वो एफएसएल में दिखाई थे। एफएसएल इज फर्स्ट सोर्स लिमिटेड है ना, तो फर्स्ट सोर्स का जो शेयर था वो 138% बढ़ा था। सीडीएसएल जो कि हमारी डिपॉजिटरी भी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पर भी हमें लगभग 100% के रिटर्न जो है वो देखने को मिले थे। मैंने जैसा आपको बताया कि सिग्नल के साथ आप प्रेडिक्टिबिलिटी का भी ध्यान रखिएगा, तो सिग्नल आप देख सकते हैं 761 का सिग्नल सीडीएसएल का, और प्रेडिक्टिबिलिटी 0.84, जितनी 1 के करीब प्रेडिक्टिबिलिटी होगी स्टॉक में उतनी ही जबरदस्त आपको मूवमेंट दिखाई देगी, कोरिलेशन उतना ज्यादा बेहतर होगा। एफएसएल का सिग्नल 358 का था और प्रेडिक्टिबिलिटी 0.86 की थी।
तो जितनी अच्छी प्रेडिक्टेबिलिटी, जितना अच्छा सिग्नल, उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिनिमम भी अगर आप देखो तो KNR कंस्ट्रक्शन का 10% से ऊपर का रिटर्न था। सो अभी हम बात कर रहे हैं FSL के चार्ट की। तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड का एक साल का चार्ट जो कह रहा है 138.77% के रिटर्न दिखा रहा है, और BSE ने उस टाइम पर एक साल में जो रिटर्न दिए थे वो 22.45% के रिटर्न थे। तो आप देख सकते हैं बेंचमार्क को कितने अच्छे तरह से बीट करते हुए AI का प्रिडिक्शन हमें जो है वो दिखाई देती है। ओवर टू यू। सो यही So वेबिनार, yeah, go ahead. सो ये वेबिनार सेल जो है आपके सामने इस टाइम 799 पर मंथ पर है अवेलेबल। AI स्टॉक्स के आपको डेली फोरकास्ट मिलेंगे 6 टाइम फ्रेम्स में। इंडियन मार्केट से रिलेटेड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर आपको प्रेडिक्शंस देखने को मिलेंगी जस्ट 799 पर मंथ, और 1500 स्टॉक्स को डेली फोरकास्ट करके, और आपके लिए टॉप 10 स्टॉक्स इन ईच टाइम फ्रेम, अपसाइड टॉप 10 स्टॉक इन ईच टाइम फ्रेम, डाउन साइड के आपको प्रिडिक्ट किए जाएंगे। हर टाइम फ्रेम में देयर आर 6 टाइम फ्रेम्स, और तीनों कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। साथ ही आपका जो होल्डिंग्स है, जो आपके पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर AI सिग्नल्स भी दिखाए जाएंगे। ओवर टू यू। Yeah, so it's all available in our special webinar sale for $7.99 Indian rupee per month. You can get all the daily AI forecasts. You can get the 6 time frames. You don't have to pick one of the time frames. You get all of them. Of course, you get the best stocks from the Indian market. If it's large cap, mid cap, or small cap. All the best sectors and indices from the Indian market. And of course, the customized AI-powered forecast for your holdings and your portfolio in the Shoonya holding section. All of this in $7.99. You can just scan this QR code and find the best Indian stocks even for the next week. So we highly suggest to start it now. Just scan the code and get to the Shoonya page and find the stock that's are going to perform the best in the following week. And we want to talk a little bit about some artificial intelligence trading strategies that we offer to our institutional clients. That's to give you an idea of how those institutional clients work in the market and what do we provide them. We provide, of course, some advanced strategies based on the S&P 500 stock universe, or the GEEX level 1 sectors and level 2. The level 1 is composed from the 11 main sectors in the S&P 500, sectors such as the energy, the healthcare, financials, and the level 2 is a subsector, for example, such as the semiconductors, the banks, or insurance sector. So we are using those levels to build the strategies we're going to see right away. We have a different kind of strategies. If it's combining sectors with stocks, if it's a long-only strategy, a long short or take profit, we have many strategies that we offer to our institutional clients. And one of them is the 25 S&P 500 stocks, in which the algorithm knows on a monthly basis to pick the best stocks out of the S&P 500 and build a portfolio out of it. We can see in this specific strategy, it's a long-only strategy based on only S&P 500 stocks, and they made a monthly rebalance every month. The algorithm provides the best 25 stocks, and we can see actually the return of this specific strategy in the last 5 years, from 2020 up until almost the end of 2024. We made 227%, while the benchmark did 73%. We can find and see the performance of this strategy on a yearly basis and on a monthly basis.
You can see all the data here compared to the S&P 500 performance. Yes. अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं और GICS लेवल 1 एंड GICS लेवल 2, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर फोरकास्ट एंड हमें प्रेडिक्शंस देखने को मिलती है आई नो फर्स्ट की तरफ से। एनर्जी, मटेरियल्स इंडस्ट्रीज, हर एक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सभी के ऊपर जो प्रेडिक्शंस हैं वो दिखाते हैं। और इट इज नेक्स्ट स्लाइड बेन प्लीज। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडियन मार्केट में नहीं बट ओवरसीज मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं। S&P 500 की जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न जो था वो 61.36% का था, और वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल रिटर्न की AI के थ्रू तो 368% के रिटर्न जो है वो देखने को मिले थे। और ये कंबाइंड स्ट्रेटेजी थी। लॉन्ग ओनली सेक्टर स्ट्रेटेजी में ओवरऑल रिटर्न 102% के आपको AI के थ्रू AI की स्ट्रेटेजीज में देखने को मिले, और वैसे एक्चुअल S&P के 61.36% के रिटर्न थे। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पाई स्ट्रेटेजी में भी सेम आप देख सकते हैं, मतलब 47% और 157% के रिटर्न AI के। हर जगह आपको बेंचमार्क को एटलीस्ट अगर हम कम से कम भी देखें तो डबल रेशियो से बीट करते हुए आपको दिखाई देगा। जो लो रिस्क स्ट्रेटेजी है वहां पर भी आप देख सकते हैं 85% के रिटर्न, और वहीं बेंचमार्क के रिटर्न 47% के। 25 S&P 500 स्टॉक्स स्ट्रेटेजी करेक्टर अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं आउट परफॉर्म किया है 154% से। AI जो है आपकी हेल्प करता है। अभी इंडियन मार्केट में ये स्ट्रेटेजीज नहीं आई हैं, बट लेकिन यस ओवरसीज मार्केट्स में जो है ये स्ट्रेटेजीज चलती हैं, और AI इनके ऊपर जो है वो प्रेडिक्शंस देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तो इनकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से सोल्ड हो चुकी हैं। 100% जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बीट करता है। 73% S&P पर और 227% रिटर्न आई नो फर्स्ट के स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉप 3 GICS लेवल है। लॉन्ग ओनली, मंथली रीबैलेंस्ड, 3 सेक्टर जो मतलब जितने भी रीबैलेंस होंगे उसके अंदर 3 सेक्टर्स को इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बट लेकिन ये सब अभी ओवरसीज मार्केट में है। इन फ्यूचर इंडियन मार्केट में भी ये सारी स्ट्रेटेजीज एंड ऑल आपको प्रोवाइड कराएंगे आई नो फर्स्ट पे। Yeah, so in this specific strategy, the algorithm picks the top 3 sectors from the S&P 500 universe, as we saw earlier, from the Geeks level 1. And just by choosing 3 sectors, it can outperform the market. You do it with the monthly rebalancing. Once a month, you choose the best 3 sectors. And you can see the performance here in the last 5 years. We outperformed the market by almost 60%. Just by choosing the best 3 sectors. We can see the performance year by year, and we can see that we actually outperformed the S&P 500 in all of those years from 2020 up until 24, which we performed 30%, while the S&P almost did almost 25%. This is a very popular strategy among our institutional clients. And in this screen, we can see the 11 sectors, and in each rebalancing that we see here to the left,
we can see which sectors the algorithm chose for each and every rebalance. If we can, for example, check the November 11, 2020, we can see the XLF with 6%, the energy sector with almost 20%, and the industrial sector with 5%. Actually, the algorithm chose the best sectors for this specific rebalance, and we outperformed the market, as we can see here, 7% compared to 2.85. It's just an example of the abilities of the algorithm to choose and be in the right sector. And as it does that with the sectors, it does that with the stocks universe as well. यस, तो GICS सेक्टर स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि AI जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे आप लोगों के आगे आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है। हर एक जगह पर उसकी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगी। 141% के रिटर्न जो है वो दिखा रहा है अपने S&P को आउट परफॉर्म कर रहा है 50% से, और S&P के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं 2020 से लेके 2024 तक के क्यूमुलेटिव रिटर्न जो रहे हैं वो 83% के रहे हैं, और IKF के जो रहे हैं वो 141% के रहे हैं। तो ये आपको एक मतलब जिस तरह से पूरा एक ओपन करके बुक रखी हुई है, आप उसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट यस, अभी ये स्ट्रेटेजीज इंडिया में लॉन्च होंगी। फिलहाल इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शंस और सिग्नल आपको शून्य पर ऐप पे और डेस्कटॉप पे दोनों पे ही दिखाई दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। So different इसके वेटेज एंड डेली बेसिस के हिसाब से ये आपको दिखा रहा है कि सेक्टर स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, so if some of your institutional clients, please feel free to approach us by mail or via the website, and we'll help you find a strategy that fits to you. So as we talked about, we saw that the algorithm can generate forecasts for different assets. If it's, of course, US stocks, as we saw the example of Palantir and MSTR, the crypto company Hood that was very popular stocks in the last few days, Tesla and many others popular stocks. The algorithm is actually providing a forecast for all of these stocks, and we can see the returns also in the US market, if it's a 3 days, if it's a 7 days, and even longer time frames of 1 year. What we saw, Palantir made almost 334% in the year before. We can find stocks again as TRMB, CE, and LC that also relative to the AI universe that is really popular right now. And beside the stock, we also offer indices forecast, which you can find more than 175 main indices around the world that the algorithm provide a daily forecast for this specific universe. We can see the Chinese market, the Hong Kong Stock Exchange, and many others. And of course, the Indian indices is also included in this specific forecast. In the same way, we have a fixed income forecast for US government bonds, and a really popular forecast, the commodities forecast, which you can find the forecast on the uranium, on the gas, on the crude oil, wheat, and many others commodities. The algorithm is also providing forecasts for 6 time frames for this universe, the commodity universe. We can find the gold and silver as well in this universe.
and this is an example for the specific forecast commodities universe. And over to you, Kashi. जैसे हमने आपको इंडियन स्टॉक्स का बताया, उसी तरह से एआई स्टॉक्स जो है वो एआई जो है वो यूएस स्टॉक्स पर भी अपनी प्रेडिक्शंस देता है। सो आप देख सकते हैं यूएस के अंदर 3 डेज का फोरकास्ट 8 नवंबर 2024 का, जहां पर आई नो फर्स्ट के रिटर्न 13.79% और एसएनपी का रिटर्न 0.47%। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से आउट परफॉर्म किए। वहीं अगर हम 7 डेज की बात करें तो 18.66% का रिटर्न आई नो फर्स्ट का, वो 4.76% का रिटर्न एसएनपी का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिले 53% से ज़्यादा तक के रिटर्न आपको कुछ स्टॉक्स में देखने को मिले। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की प्रेडिक्शंस जो हैं, ऐसे स्टॉक्स आपके लिए फाइंड आउट करना ज़रूर मुश्किल हो सकता है, बट हाँ एआई का जैसे मैंने आपको बताया वो वैसे भी अगर हम ग्लोबली देखें तो 35,000 से ज़्यादा एसेट क्लास पर पता नहीं कितने हज़ारों लाखों स्टॉक्स के ऊपर डेली फोरकास्ट देता है आई नो फर्स्ट। और हर एक एक्सचेंज पर, हर एक इंडेक्स पर आपको ये फोरकास्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर हम देखें एक साल के फोरकास्ट को, तो एस&पी का रिटर्न 20% का और आई नो फर्स्ट का एवरेज 68% का, और यहाँ पर 333% से ज़्यादा के रिटर्न किसी एक स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। ये हम यूएस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बट यस इंडियन स्टॉक्स में भी आपको ऐसे रिटर्न्स दिखाएं। और अभी इसी मीटिंग में हमने कुछ देर पहले आपको ऐसे रिटर्न्स जो थे वो शो किए थे इंडियन स्टॉक्स के ऊपर। वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबली अगर इंडेक्स फोरकास्ट की बात करें तो 3 दिन के रिटर्न 0.09% के सितंबर 2024 के, आई नो फर्स्ट की एवरेज 11% से ज़्यादा। और वहीं अगर हम बात करें 7 डेज के फोरकास्ट की, तो 7 डेज का रिटर्न माइनस में, और एस&पी का और आई नो फर्स्ट का रिटर्न 21% से ज़्यादा और 73%, 73.40% तक के रिटर्न इंडेक्स फोरकास्ट पर आपको 7 दिनों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कमोडिटी फोरकास्ट 7 डेज में आई नो फर्स्ट का एवरेज 2.48%, सितंबर 2024 का, मई 2024 का एवरेज 8.27% का। जितनी भी कमोडिटीज़ के ऊपर आपको मई 2024 में प्रोडिक्शंस दिखाई गई, हर एक कमोडिटी ने अच्छे से परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा जो आपको 13.88% तक की रिटर्न दिखाई दी। और वहीं अगर हम बात करें सितंबर की, तो 10 में से 8 जगह पे आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे। Okay, and if we want to see the best Indian stocks for the next month, for March, that the AI suggests us, please scan the Q&R code, and you'll find out what are the best Indian scripts for March. And so feel free to scan the code and see what the algorithm finds for the next month. And I'm telling you, that's some interesting stocks you can find in the forecast for March. And so use that special webinar sale that we have and get the daily forecast every day for 6 time frames using AI to identify the most promising Indian stocks from the Indian market stock exchanges. If it's a large cap, mid cap, or small cap stocks, if it's sectors or even your own portfolio, you can get that all for 799 Indian rupee per month. अगर आप फोकस देखना चाहते हैं, आप स्कैन करके देख सकते हैं। इंडियन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन एआई मार्च के लिए आप देख सकते हैं। स्कैनर आप लोगों के स्क्रीन पर है, विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर आप लोग स्कैन करना चाहते हैं, आप फटाफट से स्कैन कर सकते हैं। आपको
मार्च के जो भी स्क्रिप्ट्स होंगे बेस्ड ऑन एआई रिसर्च वो आपको देखने को मिल जाएंगे. Next slide, please. So it's a special webinar sale, $7.99 per month. 6 टाइम फ्रेम, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स आप देख पाएंगे. और कस्टमाइज एआई पावर्ड फोरकास्ट ऑन योर होल्डिंग्स. जो आपका पोर्टफोलियो है उसके ऊपर आपको एआई पावर्ड फोरकास्ट देखने को मिलेगी जो स्टॉक्स आपके शून्य के पोर्टफोलियो में आएंगे. Yeah, and if you wanna join our WhatsApp community, you can feel free to do so as well by scanning this QR code. Join our WhatsApp community, and you find the forecast about the Indian market, AI articles, and plenty other information about the Indian market. So feel free to join us to our big community in the WhatsApp group. And I think we got to the end of the webinar, and I think we can answer some of your questions. We tried to answer some of the questions during the webinar, but let's see if we have some other questions from our attendants. So let's go some questions that you've asked. So Yeah. I think, Ben, we have answered some of the questions. Yaron sir, if you would like to answer some questions, please. Of course. Okay. So how to buy the AI strategies? The AI strategies are available to institutional clients. So if in the crowd there are institutional clients, feel free to reach out and to contact Ben. Can we trade at India in the US market, and what are the displaying? Is it just for demo? Yeah, we saw a lot of examples today. All the examples that we have seen are based on the live product that available in the platform. It's based on the forecast that were available in the platform. If you want to get the most updated forecast, please use the links that are available in the webinar chat. Webinar, same goes with the US market. The links are available in the webinar chat. Regarding, I see a lot of questions, where to buy. It's available in the webinar chat. Please go over the webinar chat in order to find the links to or just scan the QR code that Ben is displaying right now. And let's see, yes, it's available in Shoonya app and also in the web app. You can find all the prices. There is no commitment. You can test drive the product, test drive the AI algorithm, and see the most updated top stock picks for today, basically. Okay, there are a lot of useful links in the webinar chat. Feel free to go over them and to use them. Please, Keshav. Yeah. Sure. So कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे जिनका यारोन सर ने रिप्लाई किया. सो एक बार मैं हमारी लोकल लैंग्वेज में भी आप लोगों को इनके रिप्लाई कर देता हूँ. सो कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये कब अपडेट होता है. तो ये मार्केट ओपन होने के पहले अपडेट हो जाता है अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास. आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. Charges is $7.99 per month. Webinar special charges. अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, सो आप 7.99 पर मंथ में यूज कर सकते हैं इसको. इट्स अ मंथली चार्जेस. अभी के लिए फिलहाल हमारे पास किसी भी तरह के ईयरली प्लान्स अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, हम इन फ्यूचर कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स लाने के इसके बारे में सोचेंगे. तो जो भी सिग्नल्स आपको ग्रीन कलर में आ रहे हैं, दैट्स आर पोटेंशियल अपसाइड. रेड सिग्नल वाले सिग्नल्स ऑब्वियसली पोटेंशियल डाउनसाइड, बट इंडियन मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन इक्विटी सेगमेंट में नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ों का ध्यान रखिएगा. एनी प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग ऑप्शंस? नो, नॉट येट.
बट यस, आपको अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी प्रोडिक्शंस दिखाई देती हैं जो कि जिसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड होते हैं, तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अगर कोई पोजीशन लेना चाहें आप ले सकते हैं पहले, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूरी है। सो हाउ डू आई सब्सक्राइब एंड पे? तो सब्सक्रिप्शन लिंक इज इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स के थ्रू लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज आप शून्य ऐप के अंदर जाकर भी हब में IKF आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पे करके। सो beta.shoonya.com पर आप इसको ले पाएंगे। बट यस, आप it takes me to beta.shoonya.com and post login. I am not sure how to proceed. Please guide. So yes, you can click on the IKF show on the dashboard. So when you click on IKF, get started, and there would be the payment link. You can fill your payment detail, and after that you can use the services of I Know First. Sounds good. I see a lot of questions about the subscription. Just use the links that are in the webinar chat. So लिंक इज इन द वेबिनार चैट, लिंक आपको चैट में मिल जाएगा, आप वहां से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। beta.shoonya.com पर अपने शून्य के क्रेडेंशियल्स डाल के आप लॉगिन करें और डैशबोर्ड पे आपको IKF दिखाई देगा। IKF पर क्लिक करेंगे तो आपको आई नो फर्स्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप पेमेंट करके अपने प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। इट्स 799 पर मंथ, इट्स अ वेबिनार स्पेशल सेल। सो आप यहाँ से इट्स अ वेबिनार डिस्काउंट, जहाँ से आप वेबिनार को की सेल का यूज करके अपना आई नो फर्स्ट का प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन रैप इट अप एंड सभी दर्शकों से निवेदन है कि आगे भी जो हमारे वेबिनार्स होंगे, प्लीज डू जॉइन अस। हम लोग आपके लिए फ्रीक्वेंटली वेबिनार्स लेके आते रहते हैं ताकि हम आपको अवेयर करें मार्केट्स के बारे में और आपके लिए कुछ अच्छे इंसाइटफुल लेकर आए जो कि AI बेस्ड इंसाइट्स आप लोगों को मिले और आप इसका यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बेहतर बना पाए। Thank you, Yaran sir. Thank you, Ben, to provide this special tool for all the traders in Indian market because it's really very important for us. There are many of the stocks listed in our market, and you all are doing a great job by analyzing daily more than 1,500 stocks and give predictions on that. So it's really very helpful for me and for many people and many traders like me who want to invest or trade in the market for and want to stay in the market for long term. Great, Keshav. Thank you. Thank you, Keshav. It's a pleasure. It was a pleasure. And see you next time. And I'm inviting everyone to use AI in order to beat the Indian market. Thank you very much, Keshav. Bye-bye. Thank you. Okay, Thank you, Ben. Okay. Great webinar. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.